Hello students, hope you have gone through the last video where we discussed about the economic environment of India as well as the new industrial policy 1991. Today we are going to discuss the impact of these policies on the business and industries. Definitely if I am going to introduce new rules and regulations, very strict, and everything I would require you to do in particular deadlines, more assignments, more projects, work. At first sight, you will see how we will be able to complete it. We were not in a practice, or we have never done this much, or we have never fulfilled this much of target. But then, only if you are going to face these difficulties, this scenario, you will emerge as a very positive character person with all the skills and capabilities. Just like that, the impact of all these policies in the beginning created very much challenges for the business industry in India, but slowly it had a very positive impact in which the industry and economy grew. So the policy that was changed was regarding the liberalization, privatization, and the globalization of the government, which has had a very significant impact. The Indian corporate sector has come to face to face with these several challenges. Let's see what these challenges were. Obviously, the business and industry in India faced a increased competition. They had now more demanding customers. Technology was changing at a very fast speed. There was a necessity for change. There was a need for developing the human resource, market orientation, and loss of budgetary support to the public sector. Now, these challenges can be explained as follows. First, increased competition. Now, due to liberalizing all the rules and regulations and taking off those unnecessary controls and the rules of industrial licensing, many foreign firms entered in our country. And when these firms entered, they had much good technology, good capital, number of varieties, diversifications, and the Indian firm faced a very much competition. Especially in which field? In the field of services, because until now India was only giving products and not good at services. So many foreign companies came in and gave the services of telecommunication, airlines, banking, and insurance, which were earlier only in the public sector. Before 1991 or till 1991, if we talk about, all these services used to come under the public sector and no one else was allowed. But now, when the rules were little, liberalized, the other industries came in. So, LIC and SBI, which were basic your public sector insurance company, faced a huge competition with the private insurance companies. Similarly, Air India faced a very stiff competition of overseas airlines such as Emirates, British Airways, and etc. Now, when different companies, foreign companies are coming in and giving different kind of products, जो customers हैं, अब उनको तो बहुत ज़्यादा knowledge हो जाएगी. Customers को जहाँ पे कुछ products मिलते थे, अब उन्हें बहुत सारे products मिलने लग गए और different varieties के मिलने लग गए. इससे क्या हुआ? कस्टमर्स बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, दे वर नोइंग कि कौन क्या प्रोडक्ट्स बना रहा है, क्या प्राइस रेंज है. इसकी वजह से कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए. Now, this competition was giving the customers a very wide choice to select from, and now the customers were moving from quantity to quality. अब वो लोग quality के products लेना चाहते थे, right? So this is how it was created. Like before 1991, if we talk, cars were only available in one color and only 2 to 3 brands of cars or scooters existed in the market. But after that, until now, we can see so many different brands, different colors, techniques, and everything that you get in the automobile sector. Now, after these two things came the rapidly changing technological environment. Now, अगर आपने customer base बना लिया, उस customers को अपने पास अगर रखना है, तो आपको different innovative way को develop करना ही पड़ेगा. For developing these new ways, this is very important. क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और मेन ऑब्जेक्टिव अभी आपका यही है कि आपको मार्केट में सरवाइव करना है.
सरवाइव कर पाओगे तभी तो मार्केट में ग्रो करने का सोचोगे। और ये सब कुछ करने के लिए आपको कस्टमर्स को अपने पास रखना है। सो you have to develop new ways, and for that you definitely need technology help, which will make it possible improve like machineries, processes, products and all the other services. Next is necessity for change. 1991 के एरा तक की बात करें, फर्म्स की जो पॉलिसीज थी, प्रैक्टिसेस थी, बहुत ज्यादा स्टेबल थी। अब एकदम से चेंज आया तो आपको उस चेंज को आना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी चेंज से आप इतने सारी चीजें आज अपने पास देख पा रहे हो। हम भी कहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मी या पापा, यू हैव टू ब्रिंग डिफरेंट चेंजेस इन योर लाइफ, देन ओनली यू कैन मूव ऑन। तो इंडस्ट्री उस टाइम पे बहुत ही स्टेबल पॉलिसीज के साथ चल रही थी, और कुछ चेंजेस आना जरूरी थे, कुछ कॉम्पिटिशन आना जरूरी था, एक रेजिलेंस की फीलिंग कि समथिंग हैज हिट यू और वो चीज आपको बुरी लगी और आप उससे उठ के और अच्छा परफॉर्म करो, उस नेसेसिटी की बहुत जरूरत थी। The market forces have become very turbulent, as a result of which, उस रिजल्ट की वजह से एंटरप्राइज स्टार्टेड कमिंग एंड कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग देयर ऑपरेशंस। देखने लगे किस तरीके से वो काम अच्छे से कर सकते हैं। We all know that the kind of competition and innovation technology, they keep on instilling you the need of change. Companies like Nokia, Samsung, LG keep on making changes in their product. आपको एक ही ईयर के अंदर डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे, नए एंड्रॉइड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट यू विल गेट सो मेनी थिंग्स, मॉडल्स मिल जाएंगे डिफरेंट, सो दैट their product can face competition in the market with the other products. Then need for developing human resource. There is a wide market, demand is increasing, technology is there, there is a there is a need for necessity in the change. So what will happen? इतना कुछ काम हो रहा है तो हमें इतने ज्यादा लोग भी चाहिए काम करने के लिए, और जो वो लोग चाहिए वो हमें ऐसे चाहिए जिनके पास करेक्ट इंटेलिजेंस हो, क्वालिफिकेशंस हो और ट्रेंड हो। तो इंडियन इंडस्ट्रीज हैज सफर्ड फॉर लॉन्ग विद इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल, ट्रेनिंग नहीं थी ज्यादा उनके पास, तो अब रिक्वायरमेंट थी विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट, hence the need for developing the human resource को develop करना बहुत जरूरी था। As a result, compensation level for managerial and technical services have sharply increased. Next is market orientation. अगर market orientation को समझा जाए, सबसे पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट होती थी। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जहां सिर्फ प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं और लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पहले मार्केट्स कैसी होती थी, सामान बनता था, उसमें ज्यादा चॉइस नहीं होती थी, तो कुछ ही लोग होते थे जो उन प्रोडक्ट्स को बनाते थे, और लोगों के पास क्योंकि चॉइस नहीं है तो उन्हें वही खरीदना पड़ता था। तो मार्केट पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती थी, पर आजकल वो मार्केट शिफ्ट हो गई है, अब वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है। जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं वो ही प्रोडक्ट्स बिजनेस पीपल को बनाना है। सो देयर इज अ शिफ्ट टू द मार्केट ओरिएंटेशन, in as much as the firms have to first study and analyze the market में क्या डिमांड है, उसी तरीके से सप्लाई करना है, क्योंकि अब प्रायोरिटी हो गई है फॉर सैटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स फर्स्ट, राइट? सो दैट हैज बीन चेंज्ड। एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजटरी सपोर्ट था, जिसकी तरीके से वो पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस करते थे, वो भी बहुत सालों से डिक्लाइन होता जा रहा था। सो द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव रियलाइज दैट कि अगर उन्हें भी सर्वाइव और ग्रो करना है, दे विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। So on the whole, as I have already discussed, the government policy changes, particularly in respect of liberalization, privatization and globalization, have been really positive, as the Indian business and industries has shown great resilience, बहुत ही ज़्यादा resilience दिखाया कि अगर there is something that they have learned from this, and they have bounced back in order to compete in dealing with the new economic order. So this
all we have studied regarding the impact क्या पड़ा है इन पॉलिसीज का बिजनेस और इंडस्ट्री पे। ये इम्पैक्ट हमने देखा, कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नेसेसिटी फॉर चेंज का हमने पढ़ा, उसी हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट ज़्यादा थी, मार्केट ओरिएंटेशन चेंज हुआ एंड लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। Okay class, so now we are going to go through this topic, that is managerial response to the change in business environment. हमने ये देखा कि जो पॉलिसी के अंदर चेंज आया उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा बिजनेस पे। अब हम ये देखेंगे कि बिजनेस ने कैसे दोबारा बाउंस बैक किया, कैसे रिस्पॉन्स किया इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को। ऑब्वियसली वो लोग अपना बिजनेस बंद करके तो बैठ नहीं सकते थे, इतने सालों से चल रहा था और एकदम से फॉरेन कंपटीशन आया, पॉलिसीज चेंज हुई, किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, किसी पे नेगेटिव पड़ा, बट देयर वर वेरियस चैलेंजेस दैट वाज अग्रीड and they have adopted different kind of strategies to meet all these kind of challenges. Let's see what are these strategies that have been adopted. First was acquisitions and mergers. Now what was happening, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो जिनको लग रहा था वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वो एक दूसरे से मिलके मर्ज हो गई और उसको बोलते हैं मर्ज होना, और किसी ने बाकी कंपनीज को अपने अंडर उनको ले लिया, एक्वायर कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशंस। ऐसे एक्विजिशंस एंड मर्जर्स बहुत ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस टाइम पे? सबसे पहले तो आपको सरवाइव करना है, सरवाइव करेंगे मार्केट में तभी तो ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। सेकेंडली दे नीडेड मार्केट डोमिनेंस, डोमिनेंस होना चाहिए, मार्केट एंट्री के बारे में सोच रहे थे, प्रोडक्ट रेंज अगर एक्सपैंड करनी है तो मर्जर्स के लिए सोच रहे थे, and obtain core competencies. The Indian business enterprises are also indulging in mergers and acquisition initiative. For some was naturally come from managers of such companies. Example, mergers between ACC Gujarat, Ambuja Cement, Hindustan Aluminium Company and Indian Aluminium Company. Reliance gaining control over management of L&T is an example of acquisition. ये acquisition के examples थे और ये आपके मर्जर्स के एग्जाम्पल थे। और क्या टेक्निक्स उन्होंने देखी? सेकेंड टेक्निक वाज डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। नाउ पहले क्या होता था, मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी सपोज वर्क कर रही थी एक ही फील्ड में या एक ही सेक्टर में, जैसे बात कर लो से टेलीकम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इसकी नीड कम हो जाती, आई एम जस्ट टेकिंग इट एन एग्जाम्पल, अगर इस कंपनी का सिर्फ एक ही सेक्टर में डील कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन में और इसकी डिमांड गिर जाए तो उसको तो बिजनेस में लॉस झेलना पड़ेगा बहुत सारा, राइट? तो व्हाट दे डिड, अब कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी अपना बिजनेस इन वेरियस फील्ड्स। तो अगर वो टेलीकम्युनिकेशंस के अलावा और भी डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करे, राइट, जैसे कि टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, राइट, टेक्सटाइल में भी वो वर्क करे और भी बहुत सारी फील्ड्स में करे, राइट? तो अब क्या होगा, अगर एक के अंदर लॉस है तो वो लॉस वो दूसरे से रिकवर कर लेगी या तीसरी फील्ड से रिकवर कर लेगी। तो इससे क्या होगा, अगर वो अपना, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बिजनेस रिस्क इन क्लास 11, तो उनका जो बिजनेस रिस्क है वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी फील्ड्स में। तो अब उनको ये नहीं, एक चीज से नहीं, अगर एक में कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो वो किसी और से फायदा उठा लेंगे, राइट? सो इसके अंदर कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गई। कैसे? मैनेजर्स लीडिंग टू डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे रिलायंस की बात करें, अब वो सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं कर रही, इट इज वर्किंग इनटू कम्युनिकेशंस, रिटेल चेन्स, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, right? There are many sectors at which it is working. Likewise, Euroca Forbes. Now, first in the firm that manufactured only vacuum cleaners started now making water purifier as well as food processors, right? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपका वोल्टास है, सैमसंग है, एलजी है, राइट? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट किया। आपका भेल है जिसने सोलर एनर्जी में भी, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी था, वाटर
उसके अंदर भी उनका बिजनेस था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में दे वर डाइवर्सिफाइंग. देन कंसोलिडेशंस ऑफ मल्टीनेशनल्स. Many multinationals have, due to liberalization policies, बहुत सारी MNCs have entered into the Indian market through the joint ventures. एक साथ मिलके आ रही थी. Now, क्या होता था पहले joint venture के अंदर? इसको आप consolidation of multinationals भी बोल सकते हैं या फिर joint ventures भी बोल सकते हैं. A foreign company that want to come to India and set up business, it is not easy for them also, because they do not know the requirement of a country which has diversified cultures and so many religions and languages. वो अकेले ये काम नहीं कर सकते थे. अभी जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था, उसके डायमेंशंस पढ़े थे, सोशल पढ़ा, पॉलिटिकल पढ़ा, लीगल पढ़ा. अब हो सकता है फॉरेन को इनकी इतनी ज्यादा, फॉरेन फर्म्स को इनकी इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो, तो इसके लिए दे वांटेड कि कोई उनके साथ इंडियन कंपनी साथ में आए, एक जॉइंट वेंचर में आके वो काम करे, ताकि वो बेनिफिट एक दूसरे का ले सके, राइट? So this gives the new firm the benefit of technology as well as finance, and the MNC could take the advantage of the domestic firm market reach. ठीक है? अगर जैसे कि हीरो होंडा था, तो हीरो को being an Indian company, they knew कि what was the distribution channel, कहाँ पे requirement है, इंडिया के कौन से एरियाज में ज्यादा रिक्वायरमेंट है. पूरे जोग्राफिक के बारे में, इंडिया के बारे में सिर्फ इंडियन कंपनीज जानती थी. बाकी जो होंडा है, दैट वुड प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, बेस्ट रिसोर्सेज, दैट वाज फ्रॉम जापान, एवरीथिंग वो देने को रेडी थे. बट जब इन दोनों का मिलन हुआ, they came as a joint venture, they did really well, and now you can see so many of their products and services in our country. तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में आपको भी पता लगता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरल मोटर्स जो एंटर हुआ था, दैट एंटर्ड विद हिंदुस्तान मोटर्स. फोर्ड एंटर्ड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा. ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. जनरल मोटर्स का आपको पता लग गया. होंडा एंटर्स विद सील, जैगुआर एंटर विद टाटा मोटर्स, वोडाफोन विद आइडिया. ऑल्सो आपने मारुति सुजुकी सुना होगा, मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापानीज. दैट्स हाउ दे एंटर्ड. So that was also one of the strategy. तो अभी तक हमने क्या क्या strategies पढ़ी बच्चों? First we learned about the acquisitions and the mergers, then diversification, then consolidation. Now brand building. Now till 1991, no one has emphasized on building up a brand. थोड़े से products बनते थे और लोगों को वो ही खरीदने पड़ते थे. पर अब मार्केट में जब आपकी ऑडियंस जो है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, नाउ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, उनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं और इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो आपको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा. Their managers are spending very huge amount on same also. Different strategies are being done, like advertising, sales promotion, door to door selling. Focus is on securing prime positions for their brand through creative mix in the minds of the customer. For example, heavy expenditure was incurred on launching of the Korean brands such as the Hyundai, LG, Samsung, etc. Indian companies also started doing likewise. After that, distribution and selling. पहले तो भाई थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स बनते थे, लोग अपने आप जाते थे उसे खरीदने के लिए. पर अब इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए हैं, अब हमें लोगों के पास प्रोडक्ट्स को लेके जाना पड़ रहा है. इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर कोई चाहता है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग का जो भी चैनल था, वो भी देखो किस तरीके से चेंज हुआ. was taken at a very core step to grab the large share of the market. मार्केट का अगर आपको बड़ा हिस्सा चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग पे काम करना पड़ेगा. New initiatives in distribution were taken, such as exploring the rural markets तक जाना, or using direct distribution networks as adopted by companies. Amway, Tupperware, आपने देखा होगा, Oriflame also. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो घर पे आके चाहती हैं कि आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएं, चाहे उसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में
आपके घर पे आएंगे और आपको बोलेंगे आप ट्राई करिए, हम आपको इसका डेमो देंगे एंड ऑल दीज थिंग्स. देन द कस्टमर फोकस. नाउ एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, प्रोडक्ट्स से मार्केट कहाँ चेंज हो गई, सीधा कंज्यूमर्स के ऊपर. सो द कस्टमर, क्या हुआ था, मार्केट में कंपटीशन एकदम बढ़ चुका था, एंड ड्यू टू द इंक्रीज कंपटीशन you wanted increase attention of customer needs also. और उनको अगर satisfy करना है तो प्रोड्यूसर से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कंज्यूमर पे. So Indian firm would focus on higher sales and profit, but they have started manufacturing products in according to only customer need. जैसा वो चाहते हैं वैसे ही बनाना है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा स्ट्रेस किया गया. डेफिनेटली इससे बेनिफिट कस्टमर्स को ही हुआ. Also, due to increase in the competition among sellers, the rate of increase in price of product was lesser than the general level of inflation. Then, sharply improvised compensation levels. Now, at that point of time, अब बहुत सारी कंपनीज थी, से कंपनी ए, कंपनी बी, सी, डी. पहले तो कुछ ही कंपनीज होती थी, किसी की एक में जॉब लग गई वो तो उसी के अंदर रहेगा और कोई अपनी जॉब तो स्विच करेगा नहीं. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, इफ एनीवन वाज प्लेस्ड इन कंपनी ए, अगर उसको सेटिस्फाई अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से नहीं रखा जाता था, वो दूसरी कंपनी में चले जाते थे, दूसरे से तीसरी. तो देयर वाज वेरी हाई टर्नओवर ऑफ दीज एम्प्लॉइज और लॉयल्टी भी नहीं थी. उन स्टाफ पे जिन पे आपने इतनी मेहनत करी, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की, उनको आपको गेन करने के लिए बहुत सारे कॉम्पनसेशन मींस सैलरी पैकेजेस रखने बहुत जरूरी थे. नाउ फॉर दिस दे स्टार्टेड सैलरी फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएटेड हैव राइजन सिग्निफिकेंटली. आपको सैलरी तो देनी थी, सैलरी पैकेजेस बनाने थे, कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने थे, कुछ डील्स होनी थी, इंसेंटिव स्कीम्स भी वो लेके आए टू रिलेटेड टू परफॉर्मेंस फॉर बीइंग इम्प्लीमेंटेड वेरी कॉमनली, विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड. किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस हिसाब से इंसेंटिव्स देना, प्लस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना. ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस स्केल के बाद डेवलप होनी स्टार्ट हो गई. सो दिस वाज योर पॉइंट, शार्पली improvised and compensation levels. Use of latest technology, definitely to give innovative products. अगर आपको अपने कस्टमर्स अपने पास रखने हैं, ब्रांड को बना के रखना है, every time you need to give them good products, and in order to provide that you have to have use the latest technology. आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है हर काम के लिए, and enable the firms to upgrade its quality, but has also reduced the cost of production and distribution of goods. Increased production capacity. अब जिस तरीके से आपकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी और रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी, वो रिमूव हो चुकी थी ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कंपनीज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी. पहले क्या था, आपको बताया था क्वांटिटी के ऊपर, कितना क्वांटिटी आपको बनाना है उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप इससे ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल 1000 टन ऑफ स्टील है, आपकी कंपनी स्टील बनाती है, तो आप इससे ज्यादा, दिस इज जस्ट अ रैंडम फिगर, तो आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते. अगर आप नहीं बना सकते तो तभी तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था. अब जब ये सारे बैरियर्स हट गए तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दी एंड स्टार्टेड केटरिंग टू द डिमांड्स इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक Ranbaxy, Reliance Industries and other increased the production capacity and made them world class. Also, there is a very much need to cooperate with the labor unions. Contrary to the role in past, labor unions have become supportive to changes in the organization because they have understood that finally workers will benefit due to such changes. Managers are changing their behavior towards labor. अब labor को सिर्फ labor class नहीं समझा जाता, because they are the one who are producing more, who are doing work day and night, who are meeting the objectives of the organization. तो इन यूनियन के साथ भी आपको कैसे कोऑपरेट करना है, इस पे भी चेंजेस आए, बहुत सारे एक्ट्स आए, रेगुलेशंस आए, जिसके लिए उनका हक रखा गया.
लेबर इज ऑल्सो बेनिफिटेड विद हायर वेजेस एंड अदर फैसिलिटीज, जैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उनकी स्किल्स अपग्रेड हो, जॉब एनरिचमेंट. Private sector has benefited because of this change, but public sector, however, was unable to adapt to these changes primarily because of the political and bureaucratic interference. उनके वहाँ कुछ ना कुछ interference रहती थी जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए and they had to suffer. So for today, we are done with this class. Only one topic is left, and after that, we will be done with the chapter. Thank you so much, class.